करते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. 144 कार्टून्स 144 cartoons of Coke can 144 cartoon of Coke can and 90 cartoon of Pepsi can 144 cartoon of Coke can and 90 cartoon of Pepsi can are to be stacked in a canteen. Are to be stacked in a canteen. 144 cartoon of Coke can and 90 cartoon of Pepsi can are to be, ये R है, ठीक है, all ना लगे, are to be stacked in a canteen. Are to be stacked in a canteen. ठीक है. If each stack is of the same height, if each stack is of same height, if each stack is of same height and is to contain cartoon of same drink, cartoons of same drink, what would be the greatest number of cartoons? What would be greatest number of cartoons? What would be greatest number of cartoons each stack would have? Each stack would have. I hope the question is clear. एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ. 114 कार्टून ऑफ कोक कैन एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन. If each stack is of same height, and is to contain cartoon of same drink, what would be greatest number of cartoons each stack would have? So greatest number of cartoons can be founded by taking their SCF. Just find the greatest number of cartoons. So you have to apply equal division lemma between 144 and 90. So the SCF will give you the greatest number. 144 is equal to 90 into 1 plus 54. Now 90 और 54 के बीच में 90 is equal to 54 into 1 plus 36. Now 54 and 36 के बीच में 54 is equal to 36 into 1 plus 18, and now 36 is equal to 18 into 2 plus 0. So your highest common factor comes out to be 18. So what would be the greatest number of cartoons? So the greatest number of cartoons are 18 that each stack would have. आ गया सबका? Note it down. Write down next question. Using Euclid division algorithm, find the largest number that divides 1251 9377 and 15628 leaving remainders 1, 2 and 3. सो इस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन पहले कर चुके हैं. वहां पर सेम रिमाइंडर आ रहा था.
वहां पर सेम रिमाइंडर आ रहा था, यहाँ पर उसने बोला है कि हमको एक लार्जेस्ट नंबर से इन सबको डिवाइड करना है, इन सबको हमको डिवाइड करना है एक लार्जेस्ट नंबर से, और वो जो नंबर है x, जब डिवाइड करोगे इस नंबर को तो रिमाइंडर 1 देगा, इसको डिवाइड करोगे 2 देगा, इसको डिवाइड करोगे 3 देगा। यानी कि अगर हम ये रिमाइंडर इन सब से माइनस कर दें, तो वो x कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा वो उन तीनों का एचसीएफ होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो उन तीनों का एचसीएफ होगा। सो 1251 minus 1 that is 1250, next 9377 minus 2 that is equal to 9375, next 15628 minus 3 15625। अब इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको निकालना है एचसीएफ, इन तीन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सो कैलकुलेट द एचसीएफ, जो भी नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। निकालो, सबसे पहले किसको कंसीडर करेंगे, 1250 और 9375, 1250 एंड 9375, इन दोनों के बीच में निकालते हैं। सो 9375 इज इक्वल टू 1250 इंटू 1250 इंटू, डिवाइड करो आप लोग, डिवाइड करो, दैट विल बी इंटू 7 प्लस the remainder comes out to be 625, the remainder comes out to be 625, next 1250 that is equal to 625 into 2, तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 625, नेक्स्ट 625 और किसका निकालना है 15625, तो ये कितना आएगा 15625 is equal to 625 into, when you multiply 625 by 25 it is completely divisible, plus 0. So that highest factor is 625. I hope the question is clear. Write down next question. Two brands of chocolates are available in a pack of 24 and 15. दो ब्रांड है चॉकलेट के, टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट, ये ब्रांड 1 है, ठीक है, और ये ब्रांड 2 है, ब्रांड 1 एंड ब्रांड 2। मान लो कि ये कैडबरी है, ये डेयरी मिल्क है, ठीक है, ब्रांड। टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 24 एंड 15। इसका जो पैक आता है वो 24 का आता है और इसका जो आता है वो 15 का आता है। इट्स नॉट रुपीज, इट्स पैक, नंबर ऑफ पैक्स, ठीक है। इफ आई नीड टू बाय an equal number of chocolate of both kind, अगर मुझे equal number of chocolates चाहिए both kinds के, what is the least number of boxes of each kind I would need to buy? What is the least number of boxes of each kind I would need to buy? वापस से कंसेप्ट पे ध्यान दो, मुझे इन दोनों के इक्वल अमाउंट्स चाहिए, तो मैं इसके कितने बॉक्स लूं और इसके कितने बॉक्स लूं, लीस्ट नंबर उसने क्वेश्चन में बोल के रखा है। यानी कि हम यहाँ पर निकालेंगे इनका एलसीएम। एक क्वेश्चन किया था पेंसिल बॉक्स और क्रेयन बॉक्स का, क्वेश्चन किया था पेंसिल बॉक्स का और क्रेयन बॉक्स का, तो कितना आएगा इनका एलसीएम 24 और 15 का, 24 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, निकाल लो, 2 12 15 3 4 5 2 4 8 8 3 24 into 5 that is 120. So LCM comes out to be 120. So what are the number of packets of first brand के total number of packets कितने लूं, 120 divided by 24, यानी कि 5 पैकेट्स
ठीक है। एंड सेकंड के 120 डिवाइडेड बाय 15, 120 डिवाइडेड बाय 15 दैट शुड बी 8। तो अगर मैं सेकंड ब्रांड के 8 पैकेट लेता हूं, सेकंड ब्रांड के 8 पैकेट लेता हूं और फर्स्ट ब्रांड के 5 पैकेट लेता हूं, तो मुझे जो टोटल चॉकलेट्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? 120 मिलेंगी। और चॉकलेट्स बराबर होनी चाहिए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। कंसेप्ट समझ में आया? देखो बीच बीच में मैं एचसीएफ के साथ एलसीएम का क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ठीक, डन। 15 पेस्ट्री एंड 12 बिस्कुट पैकेट्स, 15 पेस्ट्री एंड 12 बिस्कुट पैकेट। बिस्कुट के पैकेट कितने हैं? बिस्कुट के पैकेट कितने हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंड पेस्ट्री के पैकेट कितने हैं? 15 पेस्ट्री एंड 12 बिस्कुट पैकेट। 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पैकेट्स हैं पेस्ट्री के और बिस्कुट के कितने पैकेट्स हैं? बिस्कुट के कितने पैकेट्स हैं? बिस्कुट के पैकेट्स हैं टोटल 12 पैकेट्स। These are 12 packets. So 15 pastry and 12 biscuit packets have been donated for a school fete. इतने बिस्कुट के पैकेट और इतने पेस्ट्री के पैकेट, पेस्ट्री के पैकेट कितने हैं? 15। इनको डोनेट किया गया फॉर अ स्कूल फेट। नेक्स्ट पॉइंट, these are to be packed in several smaller identical boxes, with same number of pastry and biscuit packet, in each. How many biscuit packet and how many pastry, and how many pastry will each box contain? यानी कि हमको कितने बॉक्स बनाए जाएं, कितने बॉक्स ऐसे बनाए जाएं छोटे छोटे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि these are to be packed in several smaller identical boxes with the same number of pastry and biscuit in each। मान लो कि मेरा एक बॉक्स ये, ऐसे मैंने बॉक्स लिए, ठीक है। और इन बॉक्स में बिस्कुट भी डाला है और पेस्ट्री भी डाला है, बिस्कुट भी डाला है, पेस्ट्री भी डाला है, बिस्कुट भी डाला है, पेस्ट्री भी डाला है। कुछ इस तरीके से डाला है, they have the same number of pastry and biscuit packets in each। यानी कि नंबर ऑफ पेस्ट्री और बिस्कुट पैकेट्स सेम होने चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि यहां पर हमको क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, the required number of boxes which will contain equal number of both pastry and biscuits will be nothing but HCF of 12 and 15। HCF of 12 and 15, तो 12 और 15 का इक्वल डिवीजन लेमा से HCF निकाल दो, 12 और 15 का, so 15 is equal to 12 into 1 plus 3, so 12 और 3 का 3 into 4 plus 0, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 होने चाहिए। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स। और हर बॉक्स में पेस्ट्री और बिस्कुट कितने आएंगे? टोटल बिस्कुट के पैकेट कितने थे? 12। सो 12 बॉक्सेस कितने हैं? 3। सो नंबर ऑफ बिस्कुट्स इन ईच बॉक्सेस विल बी 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। Next, number of pastry in each boxes, that will be 15/3, that is 5। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखो क्वेश्चन में उसने बोला था कि हर बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ बिस्कुट्स आने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पेस्ट्री आनी चाहिए। यस, so number of biscuits will be 4, number of pastry will be 5 and the total number of boxes will be 3। I hope the question is